بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں بھی تھے یہی الفاظ تھے۔ اللہ، اللہ تعالی، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہ، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے۔ جی الف لام میم یہ حروف مقطعات یعنی توڑ کے پڑھنے والے لفظ ہیں۔ الف کو علیحدہ پڑھیں گے، لام کو علیحدہ پڑھیں گے، میم کو علیحدہ پڑھیں گے۔ ان حروف مقطعات کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے اسی صورت میں انشاءاللہ۔ اب میرے خیال ہے 7ویں 8ویں آیت میں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی جو ابدیت ہے، صرف معبود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ وہ معبود کے لائیں۔ کیوں؟ الحی القیوم، کیونکہ وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، الہ ایسا ہونا چاہیے نا جو ہمیشہ زندہ رہے۔ ٹھیک ہے، الہ ایسا ہونا چاہیے جو سب کو قائم رکھنے والا ہو۔ دیکھیں جو حیات ہے نا، حیات یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، سوری صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا حیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم یعنی قائم رکھنے والا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو موجود ہے اس دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے سب کو، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پھیپھڑے جو حرکت کرتے ہیں، دل ہمارا حرکت کرتا ہے، تو بیسیکلی یہ ایسی چل رہا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ہم ہر سانس لے رہے ہیں، ہر آنے والا سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ القیوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جی نادش آگے۔ نزلہ اس نے نازل کیا، اتارا، علیک الکتابہ آپ پر کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدق کلمہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو بینہ یدیہی جو اس سے پہلے تھی، وانزل التوراۃ اور اس نے نازل کیا تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت تھی، للناسی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اس نے نازل کیا اتارا فرقان۔ جی اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ سورہ آل عمران ہم شروع کر چکے ہیں۔ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دو صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ زہرہ وین ہیں۔ زہرہ وین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے اور فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یعنی یہ دو صورتیں جو ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ یہ جو بندہ اس کو پڑھتا رہتا ہے تو یہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے، اس بندے کی مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گی۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ نزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ پر کتاب نازل کی، بالحق حق کے ساتھ۔ اچھا کتاب کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا وہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ کتاب کہتے ہیں قانون کو، قانون، جیسے کتبہ علیکم الصیام کہ اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کر دی ہے تم پر، یعنی تم پر فرض کر دیا ہے روزے رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب بیسیکلی جو ہے وہ قانون کو بولا جاتا ہے۔ نزل علیک الکتاب یعنی یہ کتاب، یعنی یہ قانون، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالحق کی حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ دیکھیں یہ کس نے اتارا ہے؟ اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ الحی القیوم ہے، اور وہ یعنی زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی اتنی جو ہے وہ زبردست ہستی کی طرف سے کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے، اور وہ بھی حق کے ساتھ، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ مصدق کلمہ بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ تصدیق کرنے والا ہے بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھی کتابیں۔ وہ کتابیں کون سی تھیں؟ وہ کتابیں جو ہیں وہ مختلف تھی، جیسے تورات، زبور، انجیل۔ آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے جو ہے وہ عطا کیے تھے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ صحیفے جو ہے وہ عطا کیے۔ اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور صحف بھی دیے، صحیفے بھی دیے۔
वअंज़ल तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला ने जो है वो तौरात और अंजील जो है वो नाजिल की। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर कुरान के लिए ना नज़ला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नज़ला, और तौरात और इंजील के लिए अंजला का लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये मैं इसको थोड़ा सा तलाश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि मैं कल तक आपको बता दूंगा कि ये नज़ला और अंजला इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। लेकिन वैसे अपेरेंटली जो है वो उतारना ही है, कि कुरान को भी अल्लाह ताला ने उतारा और तौरात और अंजील को भी अल्लाह ताला ने जो है वो उतारा है। मिन कबलु हुदल लिन्नास, और ये तौरात और अंजील क्या थी, ऐसी किताबें थी जो लोगों को हदायत देती थी, ठीक है, कुरान के उतारने से पहले। ठीक, हाँ, ये असल में ना आयत के ऊपर ये लाम अलिफ ला देख रहे हैं ना आप, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर रुक जाएं तो ठीक है, ना रुके तो इसको आप इकट्ठा पढ़ सकते हैं। वह अंज़ल तौरात वल इंजीला मिन क़ब्लु हुदल लिन्नास, यानी अल्लाह ताला ने तौरात और अंजील जो है वो कुरान से पहले नाजिल की लोगों की हदायत के लिए। वह अंज़ल अल फुरकान, और अल्लाह ताला ने फुरकान नाजिल किया। फुरकान का लफ्जी मतलब क्या होता है जी? को बातिल में फैसला करने वाला। जी, हक और बातिल में फर्क करने वाला। देखिए कुरान जो है वो फुरकान कैसे है, देखिए तो जो तौरात है ना वो यहूदियों पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने किताब उतारी। इंजील जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने किताब उतारी। हम जो है वो इसमें कोई शक नहीं कर रहे कि तौरात और अंजील जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा किताबें हैं, ठीक है। लेकिन अब ये कुरान ही है जिसने हमें बताया कि इन किताबों में तहरीफ हो चुकी है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इन उन बातों के मुतालिक जिनके मुतालिक कुरान खामोश है, मुसलमानों को ये हदायत फरमाई कि तुम अहले किताब की ना तस्दीक करो और ना तकजीब करो। मिसाल के तौर पर कुरान ने जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो जो औरत थी अजीज मिस्र की बीवी, उसका नाम नहीं बताया, ठीक है, लेकिन अंजील में उसका नाम जो है वो जुलेखा है, ठीक है। अब कुरान ने जो है उसका नाम नहीं बताया, तो इसलिए हम जो है वो जुलेखा उसका नाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो बातें जो कुरान के खिलाफ हैं, तौरात और अंजील में मौजूद हैं और कुरान के खिलाफ हैं, तो उसके गलत होने में कोई शक नहीं है। देखें, तौरात भी अल्लाह ताला ने नाजिल की है, इंजील भी अल्लाह ताला ने नाजिल की है, कुरान भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। तो ये तीनों किताबें जब एक ही हस्ती की तरफ से नाजिल शुदा हैं, तो इसमें जो है वो कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फर्क हमें मिलता है तौरात, इंजील और कुरान पाक की तालीमात में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, जिनके जो कुरान में भी वैसी हैं, तौरात और इंजील में भी वैसी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं तौरात और इंजील में जो कुरान के सरीहन खिलाफ है। मिसाल के तौर पर जो है वो इंजील में आता है, इंजील में वो जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जो है वो इस जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पाक है, तो वो बेटा पकड़े, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, तो हम ये इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो तस्दीक करने से मुराद यहाँ पर यह है कि तौरात और इंजील अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा हैं। और कुरान जो है वो फुरकान, फुरकान क्यों है, इसलिए फुरकान है कि कुरान बता रहा है कि इन किताबों में जो है वो तहरीफ हो चुकी है, और ये फ़र्क है इन किताबों में और ये इस कुरान में ये फ़र्क है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान को जो है वो अल फुरकान का नाम भी अता किया। जी, अंजील जो है वो तब्दील कर दी गई जी, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा उसको करार दिया ईसा अलैहिस्सलाम को। अच्छा, अगली आयत जो है वो क्या है जी? इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया कि आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयत का, लहुम उनके लिए अज़ाबुन शदीदुन, सख्त अजाब है। वल्लाहु, अल्लाह ताला अजीजुन ज़ुंतिकाम, नहायत गालिब है, इंतकाम लेने वाला है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सूरह अल बकरा हमने मुकम्मल की है, उसमें जो है वो मेन फोकस था मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन ऑल ओवर, यानी ऑल ओवर द मुशरिकीन, जितने भी मुशरिकीन हैं उनका था जिक्र, और फोकस किया गया था यहूदियों पर ज्यादा। ये सूरह आल इमरान में जो है वो मुशरिकीन से भी अल्लाह ताला मुखातिब होंगे, और ज्यादा फोकस जो है वो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने किया है इस सूरह आल इमरान में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो है वो जो अल्लाह की आयत का कुफर करेगा, यानी जो इस फुरकान को मानने से इनकार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उनके लिए अजाब शदीद है।
اور उनको अज़ाब शदीद कुछ लोगों को दुनिया में मिल भी चुका है और आखिरत में मिलना भी है। मिसाल के तौर पर जो मदीने के यहूदी थे उनको जो है वो मदीने से निकाल बाहर कर दिया गया, ये उनके लिए अजाब था। ठीक है, उनको जिजिया देना पड़ा, ये उनके लिए अजाब था। दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको अजाब दे दिया और आखिरत में भी उनके लिए अजाब है। वल्लाहु अजीजुन ज़ुल इंतिकाम, और अल्लाह ताला अजीज है। अच्छा, अब अजीज जो है ना लफ्ज, इसको थोड़ा सा गौर करें। अजीज किसको बोलते हैं? गालिब को, ये गालिब से क्या मुराद जी? गलबा पाने वाला जो हर किस्म का काम कर सकता है, हर चीज पर गालिब आ सकता गलबा पाने वाला जो हर किस्म का काम कर सकता है, वो हर चीज पर जो है वो गालिब आ सकता है। ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो हर चीज पर जो है वो गालिब आ जाए? ऐसा वही शख्स हो सकता है जिसके पास इक्तदार हो। याद रखिएगा, अजीज का मतलब होता है इक्तदार वाला, जिसके पास कुदरत हो, ताकत हो कुछ करने की, इक्तदार वाला। अजीज का लफ्जी मतलब ये है। इसलिए तो वो सूरह यूसुफ में हमने पढ़ा था ना कि अजीज मिस्र, ठीक है, यानी मिस्र का अजीज, यानी मिस्र का इक्तदार जिसके पास था। ठीक है, तो अल्लाह अजीज, अल्लाह ताला जो है वो इक्तदार वाला है। याद रखिएगा, जुल्तिकाम और इंतकाम लेने वाला है। ठीक है, यानी काफरों से अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह की आयत है ना, तो अल्लाह की आयत से जो है वो अगर कोई इनकार करेगा तो अल्लाह ताला तो इंतकाम लेंगे। ठीक है जी। जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। इसको काइंडली रिवाइज जरूर कीजिएगा। रिवाइज करने से ये होगा कि आपका जो है ना वो ये थोड़ी सी अरबी भी लफ्ज बार बार रिपीट होंगे ना, तो लफ्जों को वोकेबलरी भी बढ़ेगी और ये आयात जो है वो याद भी रह जाएंगी। और कोशिश किया करें कि ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसको अपने बच्चों को जो है वो बताया करें कि जी हमने ये आज 6 आयात पढ़ी हैं, या अपने हस्बैंड को या किसी और को, बहन भाई को, ये 6 आयात पढ़ी हैं, इसमें हमने जो है वो उसका खुलासा ये है। तो इस तरह आपको बात याद रह जाएगी। जी, अगली आयत क्या कह रही है जी? है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यख्फा, नहीं कोई चीज पोशीदा, मख्फी छुपी हुई, अलैहि उस पर, शैयुन कुछ भी, फिर अर्जी जमीन में, वला फिस समाई और ना ही आसमान में। जी, अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती वो है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो साहिब इक़्तिदार है, ज़ुल्तिकाम है, अल्लाह वो है जिस पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है, कोई चीज़ खुफिया नहीं है, चाहे वो ज़मीन में है चाहे वो आसमान में है। देखें, ये एक अल्लाह तबारक व तआला दावा कर रहे हैं, ये दावा है अल्लाह ताला का कि अल्लाह की ज़ात वो है जिस पर कोई भी चीज़ जो है वो पोशीदा नहीं है, चाहे वो ज़मीन में है चाहे वो आसमान में है। देखिए, एक चीज़, जब कोई शख्स कोई दावा करता है ना, कोई पर्सनैलिटी जब दावा करती है ना, तो उस दावे का सबूत भी आगे देती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक दावा किया कि मेरे सामने जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो पोशीदा नहीं है, चाहे वो ज़मीन में है चाहे वो आसमान में है। अब इस दावे का जो जवाब है वो अल्लाह ताला अगली आयत में दे रहे हैं कि देखो ये मेरा दावा है और इसका सबूत ये है। वल्लज़ी, वही है जो युसव्विरुकुम, सूरतें बनाता है तुम्हारी, फिल अरहामी, रहमों में, कैफा यशाउ, जैसे वो चाहता है। यानी अल्लाह तबारक व ताला जो है वो उस पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है। इवन के देखें, जो माँ का पेट होता है, एक पेट का जो है वो झिल्ली होती है, फिर उसके अंदर एक झिल्ली होती है, फिर उसके अंदर अंधेरा होता है। ठीक है, वो माँ का जो रहम है, माँ का जो पेट है, उसके अंदर जो है वो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो जैसी चाहे तुम्हारी सूरतें बना दे। देखिए, रंग है ना, नैन नक्श है, कद्दो कामत है, यही यही फर्क करने वाली चीजें हैं ना, और तो कोई चीज नहीं। बाकी तो सारा कुछ सेम है, दो टांगे हैं, दो हाथ हैं, सर है, ठीक है, पेट है, ठीक है, सारी सारी चीजें एक जैसी हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ करती है ना एक शख्स को दूसरे शख्स से, जो डिफ्रेंशिएट करती है, उसके नैन नक्श है, उसका रंग है और उसका कद्दो कामत है। ठीक है, तो अब इन तीन चीजों की मदद से अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो हर शख्स को अलग-अलग पर्सनैलिटी दे दी। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व ताला पर कोई चीज मख्फी नहीं है। इवन के अगर वो माओ के रहमों में भी वो चीज हो ना, तो अल्लाह ताला उसकी भी सूरतें खुद बना रहा है, कैफा यशा, जैसा वो चाहता है। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला हुआ, मगर वो, अल अजीजु, नहायत गालिब है। यानी वो नहायत गालिब है, उसके अलावा कोई मबूद नहीं है। ठीक है, वो साहिब इक्तदार है, कर सकता है, जिसकी सूरत जो है साहिब इख्तियार है, साहिब इक्तदार है, जिसकी सूरत चाहे जैसी मर्जी बना दे, वो गालिब है, वो जो है वो साहिब इक्तदार है। और क्यों बनाए कि किसी की सूरत, किसी को काला रंग दे दिया, किसी को गोरा रंग दे दिया, ठीक है, किसी को खूबसूरत बना दिया, किसी को जो है वो
कबूल सूरत बना दिया, किसी को बद सूरत बना दिया। क्यों बना दिया? इसलिए कि वो अल हकीम बहुत हिकमत वाला है, दनाई वाला है। हिकमत वाला है, दनाई वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है कि किसको जो है वो क्या रंग देना है, कितना खूबसूरत बनाना है, ताकि उसको जो है आजमाइश उसके मुताबिक की जा सके। याद रखिएगा, दुनिया में आने का मकसद हमारा जो है ना, हमारा आजमाना है। यानी हम इम्तहान का एग्जामिनेशन सेंटर में हम बैठे हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो सूरतें दी हैं ना, उससे भी हमारी आजमाइश मकसूद है। जी, आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आप में से कोई अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो कर ले। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है आज अल्हम्दुलिल्लाह। अगली चूंकि आयत तो थोड़ी सी लंबी थी, इसलिए जो है वो आज हमने शामिल नहीं की, तो इंशाल्लाह कल उसको पढ़ेंगे। जी, अपना फिर ख्याल रखिएगा। मैं फिर आप सबको कह रहा हूँ कि ये जो हमने पढ़ा है इसको एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कीजिएगा तर्जमे के साथ, ताकि आपको जो है वो लफ्ज़ों की पहचान भी हो जाए। और गौर कीजिएगा लफ्ज़ों पर, जैसे यख्फा मख्फी से है, ठीक है, युसव्विरू सूरतों से है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ों पर गौर करेंगे ना, तो आपको मेरा ख्याल है कि 60-70% जो है वो अरबी के लफ्ज़ खुद ब खुद जो है वो आपके जहन में आते जाएंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।